So, hello everybody, welcome back to my channel. This is Archana. और आज की वीडियो में विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्वीट एग्ज़ाम। और उससे पहले आई होप कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स ढंग से निपट गए हों, अच्छे गए हों। So the next question arises, how to prepare for sweet exam? How did I prepare? See, if you think you need a batch so that you can come into discipline, you can take a batch, but honestly, I will not recommend you to take batches for like everything. Take batches for the subjects that you are not sure of. For example, English का syllabus है that is very new for you, ठीक है, and obviously you need some guidance in that subject. या फिर जनरल टेस्ट हो गया, GAT है, so you should take uh coaching for that, like a month. A subscription you can take of any platform, adda physics wala or anything that you like. Okay, और बाकी सब्जेक्ट के लिए you have your NCRTs. NCRTs are your best friends. Even for CUET examination, if you want to crack CUET, read NCRT by-heartedly. Honestly, they are only going to help you. Okay, if you think that you can crack CUET by only solving mocks or any book, कहीं से तुम book ले लो और वहीं solve करो, no, big no. NCRTs are only going to help you there. Read it as many as number of times you can. Okay, so this is the only advice, this is the only important advice that maybe others would tell you, but I will tell you only NCRTs. And once you are done with your NCRTs, you can go forward with your MOOCs. कोई भी प्लेटफॉर्म का MOOC सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड गो अहेड विद दैट. सॉल्व एज मैनी MCQs यू कैन, बिकॉज तुम्हारे पास अब की बार ऑप्शन नहीं है कि तुम 60 में से 50 क्वेश्चंस कर लोगे. ऑब्वियसली वी हैड ऑप्शन कि हम 60 में से 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं, 50 में से 40 क्वेश्चंस, ऐसे कुछ था हमारा. ऑनेस्टली ऐसा था कि वी कुड लीव 10, बट यू कैन नॉट लीव दिस टाइम. And CUET marks, CUET is like, इट्स गेम चेंजर. अगर तुम्हारे बोर्ड्स में भी अच्छे आए हैं बट CUET में कम आए हैं तो ऑब्वियसली दैट आर गोना मैटर मोर. अगर तुम्हारा MCQ पार्ट वीक है, फॉर एग्जांपल मेरा MCQ पार्ट वीक था. आई एम गुड इन राइटिंग बट MCQs आर अ बिट वीक, ऑन अ वीकर साइड. और मैंने ऐसे कई कॉलेजेस में देखे हैं कि जिसके 90% भी आए हैं बोर्ड्स में, बट दे डिड अ वेरी गुड, they scored very well in their CUET part and they are in the same college. Okay, तो MCQ part strong बनाओ अपना. Okay, take no, give more attention to your English exam because उसके vocab, whatever syllabus is there, please go through that. Solve इंग्लिश तो अभी से लग जाओ बस, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए यू हैव NCRTs बट इंग्लिश के लिए यू डोंट हैव. और जो मैंने रुबैका मैम से पढ़ा था, यू कैन गो अहेड विद हर यूट्यूब वीडियोज़ ऑल्सो. और शिप्रा मैम इज़ देयर. ओके, वट एवर प्लेटफॉर्म यू लाइक, जहाँ से तुम कर सकते हो, डू इट. ओके, और ये एक प्लेटफॉर्म से ही करो, ज़्यादा मल्टीपल प्लेटफॉर्म से करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, मोक्स तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, लेकिन और PYQ सॉल्व करो. एंड whatever guide you need to comment, okay, I will give a reply to every query, okay, raised. So also तुम्हारे पास 1 महीना है, you can definitely score good. कट ऑफ्स देखो, किस कॉलेज की कितनी हाई है, मैं किस कॉलेज में जाना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनकी, क्या सब्जेक्ट्स की डिमांड है. ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें कोई मैथमेटिक्स करना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स ऑनर्स करना है, पर उसके लिए 12th एलिजिबिलिटी है कि तुम्हारे पास मैथ्स होना चाहिए. ठीक है, सो पे अटेंशन टू इट. सर अगर तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना तो उसमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट है 12th में, तो
go through the eligibility criteria once. Okay, make a list. So also भी you have 1 month, 8 महीना 8 मई को तुम्हारा like you'll be they will be starting with the CUT examinations. तो today is 1st April, so 1st से लेके 1st मई तक you have full 1 month. ठीक है, 1 महीने में यू हैव टू कवर एवरीथिंग. 1 महीने में NCERTs रीड हो सकते हैं बिकॉज अभी अभी तुमने 12th का पढ़ा हुआ है, रीड करी हुई है NCERTs. अगर नहीं पढ़ी हैं तो करो, उसके बिना यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर. ठीक है, डू do work hard and you'll definitely get into your college, whatever whichever you want. And I'll upload a video of college selection की कौन सी stream के लिए which college is better. तो वेट फॉर दैट वीडियो ऑल्सो. एक बार अपने कॉलेज एग्ज़ाम दे दो, जब भी तुम्हारा फॉर्म आएगा कि हाँ अभी यूनिवर्सिटीज़ फिल करनी है, कॉलेजेस फिल करने हैं, आई अपलोड दैट वीडियो ऑल्सो. तो थोड़ा ध्यान से करना चीज़ों को बिकॉज यू हैव 1 मंथ. इतना लेजर में मत जाने देना इसको, क्रूशियल टाइम है. CUT के बाद यू विल हैव इनफ टाइम टू रिलैक्स ऑल्सो. अभी भी बोर्ड्स के बाद आई नो थोड़ा हो जाता है कि बोर्ड्स के बाद चिल करना, फिर CUT के बाद चिल करना, फिर कॉलेज के बाद चिल, कहने की बात हो जाती है. बट हाँ, थोड़ा रेस्ट भी लो. ऐसे नहीं कह रही कि मैं तुम 24 घंटे पढ़ते रहो. ऑब्वियसली गिव एटलीस्ट 3 hours a day टू CUT एटलीस्ट, अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो. विच एवर कोर्स यू नीड, विच उसकी एलिजिबिलिटी क्या मार्क्स चाहिए हैं, मार्क्स तो स्कोर करने पड़ेंगे अब देखो. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी, डू वेल. I'll soon be uploading, I'll soon be coming with another video for CUT. Also, if you need any specific video on any topic, do please comment in the comment section. I'll surely reply to it. I'll be happy to reply to it. So all the best.